In this lesson, we are going to learn about introduction of international law. The words international law were used for the first time by Jeremy Bentham in 1780. International law is the law which administers and regulates relationship between states. In doing so, it enters into domain of various treaties. Here, relationship with state means state, individuals, international organization एंड नॉन स्टेट एंटिटीज. इंटरनेशनल लॉ में जो है हम लोग देखते हैं स्टेट्स, इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एंटिटीज को. ओपेनहाइम के डेफिनेशन के हिसाब से द लॉ ऑफ नेशन ऑफ और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other. Modern definition: international law is body of legal rules which regulates the nation states with each other as well as their relationship with other international actors. Difference between public international law and private international law. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें इंटरनेशनल लॉ में कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और व्हाट इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. बेसिकली प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो दो प्राइवेट पर्सन्स के बीच में जो कि डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है. जैसे कि कोई सपोज किसी का एक्सपोर्ट का बिजनेस है क्लोथ्स का, वो इंडिया में रहता है और एक दूसरा जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो इंपोर्टर जो हुआ वो अगर यूएस में रह रहा है तो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है, यानी कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहा है, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में रेगुलेट होगा. लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो जैसे कि एयर स्पेस को लेकर के, सीज को लेकर के और तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब जो होते हैं वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आते हैं. तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ regulating relationship between private persons of two different states, while public international law regulating relationship between states. In private international law, rules are framed by state legislature, while in public international law, rules are outcome of international custom and treaties. Private international law is enforced by the concerned state executive, while public international law is enforced by international pressure and fear, for example, breakage of diplomatic relations, sanctions, etc. In private international law, courts are predetermined, while in public international law, there is no predetermined court. Private international law differs from state to state, while public international law is same for all the states. Now we'll see the nature of international law. Uh, many people says that international law is not law in true sense. Supporter of this view gives following reason: there is no legislature to enact rule as municipal law. There is no executive authority to enforce international law. There is no judiciary to interpret the law. International law is frequently violated by states. बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है ट्रू सेंस में लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना तो लेजिस्लेचर ऐसा है जो जहाँ पे रूल बनाया जाए, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स कर सके, ना कोई जुडिशरी है. तो इस तरह से जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू सेंस में लॉ नहीं है. बट इंटरनेशनल लॉ इज़ लॉ इन ट्रू सेंस. काफ़ी लोग ये फेवर करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ लॉ इन ट्रू सेंस बिकॉज लेजिस्लेटिव बॉडी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्म में
यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे कि पार्लियामेंट की तरह ये एक्ट करता है। इनफैक्ट हियर लॉ इज़ मेड विद ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड क्वालिटी इनपुट, और यहाँ पे लॉ जो होता है वो और भी ज़्यादा एक्सपर्टाइज और क्वालिटी इनपुट से बनाया जाता है। इसी तरह इन्फोर्समेंट is in form of pressure and fear. There are many mechanisms of enforcement, for example, diplomatic pressure, a resolution passed against any country, action of Security Council, etc. इन्फोर्समेंट भी जो होता है यहाँ पर वो कई तरह से किया जाता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल के, या किसी कंट्री के अगेंस्ट पर रेजोल्यूशन पास करके, या सिक्योरिटी काउंसिल कुछ एक्शन लेती है। और एंड जुडिशियल मशीनरी इज इन फॉर्म ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशियल फोरम, आर्बिट्रेशन फोरम, एड हॉक आर्बिट्रेशन एटसेट्रा। जुडिशियल मशीनरी भी यहाँ होती है, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जुडिशियल फोरम्स होते हैं, आर्बिट्रेशन फोरम होते हैं, एड हॉक आर्बिट्रेशन एटसेट्रा। In conclusion, we can say international law is true law. It cannot be compared with municipal law because its origin and subject matter is totally different. यहाँ पे international law is true law, क्योंकि यहाँ पे हम म्यूनिसिपल लॉ से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। म्यूनिसिपल लॉ का जो सब्जेक्ट मैटर और उसका जो क्षेत्र है वो अलग है, और इंटरनेशनल लॉ का क्षेत्र डिफरेंट है। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video, and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.